ظاہر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا ہے. یہ پاکستان کے 75 سالوں میں تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر تھا. بلنڈر کرنے کا اعتراف کافی نہیں، اب وہ جو داغ ملک اور قوم کے ماتھے پہ لگایا اس کو دھونا پڑے گا. اس فتنے کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینکنا پڑے گا. ان 5 پیاروں نے ایک تجربہ کیا جس کا نام گھڑی چور ہے. وہ تجربہ منہ کے بل زمین پر گر گیا اور پاکستان کو بھی لے کر بیٹھ گیا. نون لیگ کا ملتان میں پاور شو. مریم نواز کے لفظی وار پر وار گھڑی چور کو سیاست سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا. عمران خان حکومت میں تھا تو جیب بھرو تحریک چلا رہا تھا. عوام کو کہتا ہے جیلے بھرو، خود زمان پارک کے بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہے. نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا 5 کے ٹولے نے اس کو پالا، یہ انہی کو ڈس رہا ہے. باجوہ صاحب نے ریٹائرڈ ہونے کے بعد کہا عمران خان بہت بڑا بلنڈر ثابت ہوا. ٹکر کے لوگ زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رو رہے ہیں. نواز شریف سے انتقامی کارروائیاں لی گئیں لیکن کیا کسی نے انہیں روتے ہوئے دیکھا؟ مریم نواز کا مہنگائی کا اعتراف ملبہ عمران خان پر ڈال دیا. کہتی ہیں ملک میں مہنگائی عمران خان کی وجہ سے ہے، اس نے IMF سے معاہدہ توڑا. لانا تھا، پھر 26 نومبر کو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے. اگر اب تم نے یہ کہا ہے کہ تم جیل بھرو تحریک شروع کرو گے تو پھر یاد رکھو تم یہ تحریک شروع کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں انہی سیلوں میں رکھیں گے جہاں پہ تم نے ہمیں رکھا تھا. عمران خان جیل بھرو تحریک شروع کرو، آپ کا علاج میں کروں گا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی کھلی وارننگ. کہا تحریک شروع کرو، تمہیں وہاں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا تھا. تمہاری طرح کوئی سختی نہیں کریں گے، تمام سہولتیں مہیا کریں گے. نون لیگ الیکشن سے نہیں گھبراتی، ہم الیکشن لڑیں گے. انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے پنجاب میں حکومت بنائیں گے. اگر ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے ملک کی معیشت یہ ٹھیک ہوتی ہے تو یہ کر کے دکھائیں. آج 22 روز گزر چکے ہیں پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہوئے ہوئے، کیوں انتخابات کا اعلان نہیں ہو رہا؟ الیکشن کمیشن کس سے خوف زدہ ہے؟ الیکشن کمیشن کو کون تاریخ دینے سے جو ہے وہ روک رہا ہے؟ ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو کر کے دکھائیں. PTI رہنما فاروق حبیب کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا کون الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے سے روک رہا ہے؟ 22 روز گزرنے کے باوجود الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. پاکستان کی عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسحاق ڈار نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. عمران خان نے کشمیر کے سفیر کا کردار ادا کیا. سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے. بیٹے بلال مشرف کی جانب سے تصدیق مرحوم کے دوستوں کو اطلاع دی کہ آج صبح انتقال ہوا. سابق صدر پرویز مشرف نے 1999 میں ملک میں مارشل لا لگا کر چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھال لیا تھا. وہ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہے. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا خاندان 1947 میں نئی دلی سے کراچی منتقل ہوا تھا. پرویز مشرف 1964 میں پاک فوج کا حصہ بنے. وہ آرمی اسٹاف اینڈ کمانڈ کالج کوئٹہ کے گریجویٹ تھے. پرویز مشرف نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں حصہ لیا. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تدفین پاکستان میں ہوگی. اہل خانہ کا دبئی میں پاکستانی قونصل خانے سے رابطہ. پرویز مشرف کی میت لینے کے لیے کل خصوصی طیارہ دبئی جائے گا. آل پاکستان مسلم لیگ سندھ کے سیکریٹری اطلاع طاہر حسین نے کہا پرویز مشرف کی میت کل کراچی لائی جائے گی. ان کے نماز جنازہ تدفین کا حتمی اعلان اہل خانہ کریں گے. سیاسی اور عسکری قیادت کا سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وفات پر اظہار افسوس. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ورثاء سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے درجات کی بلندی کی دعا کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پرویز مشرف کی وفات پر مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں.
ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने भी परवेज मुशर्रफ की वफात पर अफसोस का इजहार किया। परवेज इलाही और मुन्नस इलाही का भी गहरे दुख और रंज का इजहार। परवेज इलाही ने कहा, अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है। परवेज मुशर्रफ की पाक आर्मी और मुल्क के लिए खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ बहुत बड़े इंसान थे, हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट उनकी सोच और नजरिया था। खुदा गरी के रहमत करे। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1998 में आर्मी चीफ बने। परवेज मुशर्रफ की सरबराही में पाक फौज ने 1999 में कारगिल की जंग लड़ी। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में ही इमरजेंसी नाफिज करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लिया। साबिक सदर ने 9/11 के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। अफगानिस्तान में तवील तरीन अमरीकी जंग का हिस्सा बने। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी प्लस लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजा। परवेज मुशर्रफ ने 2008 में सदर का ओहदा छोड़कर खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली थी। हमें अपने गरेबानों में झांकना होगा। मुजफ्फराबाद से लेके अफ्रीका के उस पार जो मुसलमान बसता है, अगर ये मुसम्मम इरादा कर लें कि हमने फ़लस्तीनियों को और कश्मीरियों को आज़ादी दिलानी है, तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि उसके मदद से, उसके कर्म से ये दोनों इलाके ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। बातों से नहीं, नारों से नहीं, इशार से नहीं, मर्सियों से नहीं, तकारीर से नहीं, अमल से करना होगा। मकबूजा वादी कश्मीर में 75 साल से लहू बह रहा है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। कश्मीरी भाइयों और बहनों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ने हमेशा कश्मीरियों की हिमायत की। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुदरातियत जरूर दिलाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कश्मीर मॉन्यूमेंट पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आज़म से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने भी मुलाकात की। कश्मीर हमारी शहरख, पूरी कौम हम आवाज़। अटूट रिश्तों की तस्दीद के लिए पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले तारीख़ी इज्तिमात को हाला मखला होलाड़ पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। तकरीब में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों की खुसूसी शिरकत। दिन 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम दुनिया के सामने लाने के लिए वज़ारत ख़ारिजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। सेक्रेटरी खारिजा असद मजीद ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ था, है और रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान हर फोरम पर मज़लूम कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। रैली में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कश्मीर की आज़ादी के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़रिए तमाम हफ्ता यकजहती जम्मू कश्मीर चकोटी से शुरू होने वाला यकजहती कश्मीर मार्च मुजफ्फराबाद पहुंच गया। पैदल मार्च का आगाज 3 फरवरी को सीज फायर लाइन चकोटी से किया गया था। पैदल मार्च के शुरका का आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए श्रीनगर शाहराह पर 62 किलोमीटर का सफर तय करके आज मुजफ्फराबाद पहुंचे। शुरका की जानिब से पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाफ नारे लगाए गए। मुतालबा किया कि पाकिस्तान मसला कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी इक़दामात का जवाब दे। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। सदर आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। मुतालिबा किया, कश्मीर के तनाज़े का फैसला कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। भारत को मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करना होगी। भारत 5 अगस्त 2019 के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। मुसल्लह अफवाज और उनके सरबराहान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करते हैं। DG ISPR का यौम यकजहती कश्मीर पर ट्वीट।
DGISPR ने कहा कि बहादुर कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबा नहीं सकते। कश्मीरियों की लाजवाल जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं मरियम नवाज का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। कहा, ज़मीन पर भारत का नाजायज़ कब्जा है लेकिन कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ हैं। बहादुर कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर अमल दरामद की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के साथ खड़े हैं। भारत जुल्म की हर हद पार कर चुका लेकिन आज़ादी की आवाज़ हर लम्हा बुलंद हो रही है। मरियम नवाज ने कश्मीर के परचम को चूमते हुए ली गई तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। कश्मीरियों की आज़ादी तक गैर मशरूत हिमायत जारी रखेंगे। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का अपनी क़यादत में रैली से खिताब। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि भारत ने कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को बारहा दबाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। भारत ने पूरे मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। भारत कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करे। मसला कश्मीर को दुनिया के हर फोरम पर उजागर किया जाएगा। मज़ार कायद पर यौम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने की। सूबाई वज़ीर ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी कसाई का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। दुनिया की सबसे बड़ी जेल का नाम मकबूजा कश्मीर है। मज़लूम कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने कहा, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। मसला कश्मीर का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का वली नुक्ता रहा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए डाउ कॉलेज से ओछा कैंपस के गेट तक रैली निकाली गई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम हम आवाज, शहर शहर रैलियां, कश्मीरियों की हिमायत का इरादा। लाहौर में तहरीक इंसाफ और नून लीग की जानिब से रैलियां निकाली गई। मुल्तान, सरगोदा, जहलम, साहिवाल में रैलियां। हैदराबाद, बदीन, नवाबशाह, नौशहर फिरोज में भी अवाम सड़कों पर निकले। चमन, डेरा बुगटी, पंचकोट, जाफराबाद में भी शहरियों ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया। अटक, चिन्योट, पिंदादन खान, भंबर, कानपुर, लकी मरवत में भी रैलियां निकाली गई। कश्मीर हमारी शहरक है। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत का हक़ उन्हें दिया जाए। यौम यकजहती कश्मीर पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पैगाम। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। 75 साल से भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत जारी रखे हुए है। कब तक हम ये दिन मनाएंगे? कश्मीरियों को अब आज़ादी मिलनी चाहिए। यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का यौम यकजहती कश्मीर पर वीडियो पैगाम। मशाल मलिक कहती हैं कि लाखों कश्मीरी तहरीक आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। कश्मीरियों का एक ही मुतालबा है, अपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्क के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अपेक्स कमेटी में सिर्फ CTD की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला किया गया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में कोई भी सियासी वर्कर नहीं, इल्जामात बेबुनियाद है। निगरान वज़ीर आला KP आज़म खान कहते हैं कि काबीना की तश्कील के वक्त तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की गई। निगरान काबीना के एक वजीर सरकारी नौकर है, इसलिए महकमा हवाले नहीं किया। अनकरीब खजाना, सेहत, इत्तलात और दीगर महकमों के मुशीर लिए जाएंगे। रमजान में दालों के बहरान का खतरा टल गया। कराची बंदरगाह से दालों के कंटेनर्स रिलीज होना शुरू हो गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के मुताबिक 7,000 में से 2,000 कंटेनर्स को रिलीज कर दिया गया। बताया, $7 करोड़ के दालों के कंटेनर्स पर $3 करोड़ का जुर्माना आयद हो चुका। कंटेनर्स को रिलीज करने में ताखीर से कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी।